it may be at your institute level, or it may be within institute, it may be the head of the division, it may be the head of the office, it may be the director of the institutes, so on and so forth. Sometimes it goes beyond the institute, it goes to the IMC, and then it goes even beyond to the level of DDG. In some particular cases, it goes to the DG. So the monetary limits are set in some number of cases, and even in administrative matters, how to deal with the cases where there are specific issue of the rule. So I will go one by one. So what is delegation of power? Next slide, you can go on the next slide. And why do we delegate powers? Because the delegation of power is nothing but the authority who is competent to accord administrative approval or the financial sanction may delegate his powers to a subordinate officer for the purpose that he may decentralize the work so that the work are taken care of, all the things are not coming to him. The senior officer will restrict himself to the broad policy decisions, policy matters, and he may delegate some of the powers so that the routine nature of things or the things which are not of a very much importance, not requiring any scientific input as far as the ICAR is concerned, may be dealt at the level of a subordinate officer. He may be the administrative or the administrative head of the institute, and even to the concerned divisions of the institute. There are scientific divisions in the institute. So this is the purpose of the delegation, so that the authority down below take decision at the level and the things gets expedited. The work are not hampered because of papers and all the documents coming at the highest level. Because the highest authority are required more to give input on the policy matters, and the subordinate officers may take care of the routine day-to-day office work. So this is one of the important reasons for delegating the powers, and it has been done in ICAR also. We'll go ahead and see how far it goes in the ICAR system. And why is it delegated? I have already told you, it is being delegated. Next slide, we can go to the next slide. It is delegated so that a team manager or a team members get involved in the work. They all find themselves accountable to the system, and it helps them to become more self-reliant, efficient, and effective. So there is not much issues. अच्छा, मैं हिंदी में भी बोलूँगा, कोई इशू नहीं. तो ये है कि एक अधिकारी जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी है, उसके पास बहुत सारे इश्यूज आते हैं जो कि पॉलिसी मैटर्स के होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि, और उसके पास फिर बहुत सारे आपके ऑफिस में रूटीन नेचर के काम भी हो सकते हैं. तो ये दोनों काम को हम यदि प्रॉपरली रीडिफाइन कर दें, तो सीनियर अधिकारी अपने ट्रस्ट पर, अपने पेज पे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क बीइंग डन इन द ऑफिस, कैसा काम चलता है, कैसे किस तरह के प्रपोजल्स आते हैं, कौन सारे रूटीन टाइप हैं, तो उसको अपने अधीनस्थ कर्मचारियों में डेलीगेट करते हैं. तो दिस इज ऑल्सो डन बाय स्पेसिफिक ऑर्डर्स. ये नहीं है कि ये मुंह बोली होती है. इट हैज टू बी डन बाय स्पेसिफिक ऑर्डर. एंड ICAR के रेफरेंस में इसके लिए एक फुल फ्लेजेड डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स इन ICAR टू अथॉरिटीज ऑफ ICAR ऑलरेडी बन गई है, नेट पर भी है, आप उसको देखेंगे. तो इस प्रकार से ये हर एक अथॉरिटीज को डेलीगेशन जो है डिफाइंड है, और उसमें जो एक्सटेंट ऑफ डेलीगेशन कि किस हद तक कोई एक अधिकारी नीचे वाला किस हद तक जा सकता है, उसके ऊपर वाला कहाँ तक खर्च कर, कहाँ तक अपना अधिकारों का या अपना शक्ति का उपयोग कर सकता है, वो उसमें बहुत ही वेल डिफाइंड है. सो प्रश्न जो है वो इस पर आ सकते हैं कि जो दो चीजें हैं आप देखें, कुछ थियोरेटिकल है जो उसको देखना और समझना बहुत ही जरूरी. इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द थ्योरी पार्ट ऑफ इट, बिकॉज the specific issues on which powers
आर डेलीगेटेड टू अथॉरिटी, वो तो सारे डॉक्यूमेंटेड है, और आप एक बार पढ़ लेंगे तो उसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप ध्यान रखें, तो बाकी टेक्स केयर ऑफ सेल्फ। डायरेक्टर्स को प्लेंटी ऑफ पावर्स हैव बीन डेलीगेटेड, तो उसमें जैसे आप देखेंगे तो जो पावर्स जो है वो स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंटेड है, तो आप उसको पढ़ें, समझें, और एक जब पढ़ने लगते हैं तो आप ये देखिए कि उसमें क्रमवार कैसे डेलीगेशन फ्रॉम लोअर टू हायर अथॉरिटी जाता है। एक ही बार में जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक ही बार में उसको देखें। यदि कोई सिविल वर्क्स का काम है एंड इफ इट इज डेलीगेटेड तो डायरेक्टर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, तो डायरेक्टर को क्या पावर है, आईसीआर में जो नेशनल इंस्टीट्यूट है उसके डायरेक्टर को क्या पावर है, किस एक्सटेंट तक वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड फाइनेंशियल सेक्शन दे सकता है ओरिजिनल वर्क को या फिर रिपेयर वर्क को। इसी प्रकार यदि हम उसको हायरार्की में देखें तो ऊपर फर्दर कहाँ जा रहा है, वो आईएमसी में जाता है, देन इट गोज टू आजकल डीडीजी के पास जाता है एसएमडी के थ्रू, एंड देन फाइनली डीजी इज द अल्टीमेट सुप्रीम अथॉरिटी कैन से। तो आप जब फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर स्टडीज you take a subject, civil works, and you make a chain to what extent powers have been delegated to authorities in ICR. If you do it in this fashion, you will remember it in a better way and it will help you while you are writing your exams. ठीक है ना? तो अब हम ये जो ब्रॉड इंट्रोडक्टरी नोट के बाद या डिस्कशन के बाद हम आपके पास आते हैं ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। नेक्स्ट स्लाइड। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, when you are taking up this subject or when the you have to study this subject, you must take the references of the following 3 books. Number 1 is Delegation of Financial Power Rules of the Government of India, ठीक है ना? Number 2 है Rules and Bylaws of ICR, and number 3 is Delegation of Powers to Authorities in ICR. ये तीनों को ही देखें, ये नहीं कि केवल नंबर 3 को देखें। दिस इज माई सबमिशन। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग इन तीनों बुक्स को देखें, क्योंकि जो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स रूल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो प्रिवेल करता है। किसी जीएफआर के रूल 142 में ये कहा हुआ है कि जहां भी ऑटोनोमस बॉडी कोई रूल बनाती है, इफ एन ऑटोनोमस बॉडी प्रिपेयर्स और enacts its own set of rules, it cannot be in deviation to the rules already enacted by the government of India. So, the delegation of powers of ICR has taken care of this bottom rule, bottom माने जो कि बॉटम है इसके रूल का, और उसके आधार पर डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसको उसके सिंक में ही उसके अलाइन होकर के आईसीआर का डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू हैमर इन is that the delegation of powers of the government of India is a very important document which you need to go through, because if you do not go through that, then and if there is a question, tricky question, where they may be a hypothetical question where the powers have not been delegated in financial powers of the government of India, and they put a question of a simple type, whether this can be done by director, and you write yes, then and for instance it is not delegated under financial powers of the government of India, it will be wrong, because the delegation of power rules of the government of India prevails over all other rules that we refer to for our day-to-day work and in processing of the cases. So आपको ध्यान देना है कि डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें और उसके एक एक रूल्स को देखें। उसमें बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो कि आपको डे टू डे फंक्शनिंग में आता है, और आप जब आप पढ़ेंगे ना यू विल सी दैट उसके जो रेफरेंसेस हैं वो थर्ड वाले डॉक्यूमेंट में भी आते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिएशन ऑफ पोस्ट, एबोलिशन ऑफ पोस्ट, क्या पावर है द डेलीगेशन ऑफ पावर्स जो आईसीआर का है, it is as per the delegation of powers of the government. So there is no deviation as such. So there may be repetition but not deviation. And in case, ऐसा तो नहीं होगा, but in case if there is a deviation,
the delegation of financial powers rules of the government of India prevails over all other rules. This is the bottom line. So these three reference book आपको देखनी है पढ़ने के लिए. I hope कि आप लोगों ने ये किताबें देखी भी होंगी एंड अपनी तैयारी के समय आप इसको रेफर भी कर रहे हैं. अब जो है हम आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेलीगेशन ऑफ पावर्स के. इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल हैं, ठीक है ना. एक है जो शुरू होती है रूल 4 से, जनरल लिमिटेशंस ऑन द पावर टू सैंक्शन एक्सपेंडिचर. देयर आर सर्टेन जनरल रेस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस जिसको कि आपको देखना होगा. तो ये आपके जो DFPR की बुक है ना उसमें बहुत स्पेसिफिकली दिया हुआ है. हम ये चाह रहे थे कि आपको हम केवल गाइड करें, हम सारे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं दें, हम आपको गाइड करेंगे. आई विल गाइड यू थ्रू एंड यू रेफर टू दोज बुक्स. जैसे जनरल लिमिटेशन ऑन पावर्स टू सैंक्शन द एक्सपेंडिचर, आप यदि पेज 3 ऑफ द DFPR चले जाएं तो उसमें उन्होंने 3 कंडीशंस डाले हुए हैं. आप वो 3 कंडीशन को पढ़ो, उसको ध्यान करो, सोचो कि इसका क्या मायने निकलते हैं, और यदि वो क्वेश्चन आता है तो और उसके क्वेश्चन पर बेस्ड कोई प्रैक्टिकल्स आते हैं तो हम उसमें जो कंडीशंस दिए हुए हैं या लिमिटेशंस दिए हुए हैं उससे हमको पूरी तरह से हमें वाकिफ होना चाहिए. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. हम यहाँ पर चाहते हैं तो हम उसके कंडीशंस वगैरह डाल करके हम इसको बहुत ही डिटेल कर सकते हैं, बट एट प्रेजेंट आई कैन नॉट गो इन सच डिटेल्स, क्योंकि ये पूरी किताब है 100 पेज की, फिर 200 पेज की ICAR की किताब है, और रूल्स एंड बायलॉज भी करीब 100 पेज की है. तो 400-500 पेज को हम केवल ब्रॉड व्यू देंगे, सो दैट आपको क्या देखना है, कैसे तैयारी करनी है, दैट विल हेल्प यू इन योर लॉन्ग रन. जब आप डे टू डे ऑफिस में यूज करते हैं तो आप बहुत सी चीज़ों को नहीं भी यूज करते हैं, मगर जब आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, तो आपके पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसको आपने डील ही नहीं किया होगा, ठीक है ना. रेसिड्यूअरी पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स किसके पास है. तो अब उसमें यदि आपके पास यदि मल्टीपल क्वेश्चंस आता है, वेदर इट इज इन द गवर्निंग बॉडी और या किसमें, अब उधर में जो ICAR में इट इज द गवर्निंग बॉडी, यहाँ पर क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री. अब आपको ये देखना है कि व्हाट पावर्स आर रेसिड्यूअरी पावर्स विद द गवर्निंग बॉडी. गवर्निंग बॉडी के पास वही रेसिड्यूअरी पावर है जो कि रूल्स एंड बायलॉज में है, और वहां पर माने नहीं है, उसके अलावा कुछ इश्यूज आते हैं तो. और यहाँ पे जो रेसिड्यूअरी पावर्स है, इट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. देन यू टेक इट इन द ब्रॉडर सेंस कि जब आपको डेयर के थ्रू पैसा मिलता है तो वहां पर यदि हम गवर्नमेंट के साथ आप डील कर रहे हो, वहां पर रेसिड्यूअरी पावर्स लाइज विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री. तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि रेसिड्यूअरी पावर्स किसके पास है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार रेसिड्यूअरी पावर्स आर विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री, रूल 5 में कहता है. और प्रोविजंस ऑफ फंड्स बाय पार्लियामेंट, जो गवर्नमेंट ग्रांट इन एड देती है ICAR को, हाउ इज इट कंट्रोल, गवर्नमेंट एंड यूटिलाइज्ड, तो जो पावर्स हैं वो पार्लियामेंट में वेस्ट करते हैं. इसको आप डिटेल में देखें रूल 7 में, क्योंकि यदि हम आपको बताने लग जाए कि कैसे बजट बनता है, और बजट बनने के बाद वो कैसे राइट फ्रॉम द लेवल ऑफ इंस्टीट्यूट टू SMD टू ICAR, देन इट गोज टू डेयर टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से वो इट गोज टू, इट इज लेड इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में वो पास होता है, देन इट गोज टू द प्रेसिडेंट. और रेसिड्यूअरी पावर मीन्स जो पावर जो रूल बुक में डिफाइन नहीं है. यदि कोई ऐसे इश्यू आते हैं जिसमें पावर डिफाइन नहीं है बुक में और आपको ऐसे केस हैंडल करना है, तो वो रेसिड्यूअरी पावर है. उस केस में इट विल गो टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. उसी तरह रूल्स एंड बायलॉज में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, यदि डिफाइन नहीं है, कहीं नहीं पाया गया, होता है ना कि सर इसका पावर कहीं नहीं है, तो you have to refer to the governing body in ICAR. But in the government of India, and when we are dealing with DARE, और जब DARE और autonomous body का बीच का बात है, it will go to the Ministry of Finance, फाइनेंस मिनिस्ट्री में चला जाता है. तो रेसिड्यूअरी पावर वही है जो कि कहीं डिफाइन नहीं है. पूरे बुक में सारे पावर्स डिफाइन है. There may be such issues, और there may be such issues which come as, जैसे कोविड का समय है, कोविड के समय बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड अदर डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वगैरह ने इशू किए, तो उसमें बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए या जो भी था. तो वो पावर्स तो जैसे सर्विस रूल्स में गवर्नमेंट नहीं थे, आपको वर्क फ्रॉम होम का परमिशन दिया,
जो कि पहले कहीं सर्विस रूल्स में नहीं डिफाइन था। तो वो पावर जो है एक्सरसाइज किया गया, दिया गया थ्रू स्पेसिफिक ऑर्डर। तो रेसिड्यूअल फाइनेंशियल पावर के लिए हमें रेफर करना होगा कंसर्न डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और वो भी अपना कंसर्न डिपार्टमेंट से डिस्कस करके वो गवर्नमेंट से परमिशन लेके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेके वो कन्वे करें। तो ये नहीं कि हम अपने ही डिसीजन ले लें जो कि डिफाइन नहीं उसके बारे में। तो दिस इज द रेसिड्यूअल पावर। प्रोविजन ऑफ फंड्स पर हम आ रहे थे, तो आपको हम बता दिए कि जो बता रहे थे व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस एंड एवरीवन हैज अ पावर। अब पावर इसको यदि हम पकड़े मैंने समझे तो असेंबली को क्या पावर है, या इंस्टीट्यूट को क्या पावर है, असेंबली को क्या पावर है, देन एट द लेवल ऑफ ICAR क्या होता है, डेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब आपको ये हम, अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस is not the ultimate authority, the parliament is the ultimate authority. Not a single penny you can spend from the consolidated fund of India without the approval of the parliament. Parliament मतलब parliament में राज्यसभा लोकसभा दोनों में पास होती है, and then the president, honorable president gives her consent. उसके बाद वो गजट नोटिफिकेशन होता है और फिर वो कन्वे होता है कि दिस इज योर बजट। अब देखो जो फ्रॉम टॉप टू डाउन आए तो वो वहां पर, यहाँ डाउन टू टॉप जाए तो हम इंस्टीट्यूट से VAR का फिगर मांगते हैं, देन वी कंपाइल इट एट द असेंबली लेवल, असेंबली पुट्स अप अ डिमांड, we compile that demand and give it to the Minister of Finance, then Minister of Finance gives us a specific figure कि this is your P or this is your RE for this. Now again they say now you divide it among yourself among the different central sector scheme. अब वहां पर उन्होंने ब्रॉड पावर एक्सरसाइज किया कि हमने टोटल स्कीम बजट बता दिया। दे डू नॉट गो इनटू कि भाई क्रॉप साइंस को इतना देना है, हॉर्टिकल्चर को इतना, दिस इज लेफ्ट टू द डिपार्टमेंट डेयर एंड ICAR। तो हम लोग वापस फिर से वो फिगर को लेकर के, यदि इफ इट इज नॉर्मली क्या होता है, वो फिगर इज ऑलवेज लेसर देन व्हाट वी हैव पुट द डिमांड, इन दैट केस देयर इज अ कट इन ऑल द अक्रॉस द सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो इस टाइप से अब वो फिर से, अब यहाँ पर पावर जो है असेंबली को है, असेंबली को हम लोग कन्वे कर देते हैं कि दिस इज योर B or RE for the year. The assembly has the power to allocate it among the institute. So as you see, every stages there are graded power delegated. Assembly वो करके हमें देती है, we do not question that because the assembly is empowered to assign a specific amount to each institute under their respective assembly. और उसको टोटल करके फिर गिव इट टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से DG का अप्रूवल लेकर के, FA का कंकरेंस लेकर वी गिव इट टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पर जो पावर इज टू दैट एक्सटेंट ओनली। वहां पे हमें एक और पावर हो जाता है जब असेंबली में ग्रांट इन एड कैपिटल, जनरल और सैलरी का फिक्स्ड अमाउंट आता है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो दिस थिंग्स यू मस्ट गो इनटू द थिंग्स, ये DFPR में है। तो आपको ये पूछा जा सकता है, ये प्रोविजंस ऑफ फंड एंड डाउन बिलो अप्रोप्रिएशन रीअप्रोप्रिएशन, आपके पास 3 हेड में पैसे आते हैं। वन इज ग्रांट इन एड सैलरी, नो रीअप्रोप्रिएशन अलाउड, सैलरी का पैसा बच गया तो इट विल बी लैप्स, इट विल लैप्स। ग्रांट इन एड कैपिटल, ग्रांट इन एड रेवेन्यू और जनरल, जिसमें कि पेंशन भी शामिल है। तो फ्रॉम दिस 3 ब्रॉड हेड वी कैनॉट इंटरचेंज इट एट आवर ओन। जो भी कम्युनिकेट हमें होता है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वी डू इट, वी फॉलो दैट। But again, the Ministry of Finance gives us that room space कि जी ठीक है, within the sector, central sector scheme, grant in aid capital किसको आप कितना देना चाहते हैं, कम ज्यादा जो भी देना चाहते हैं, it is left, that powers is exercised by DDG and then again approved by DG. So this is the way things move on. तो ये है appropriation and reappropriation का जो है, ये रूल 10 में डिफाइन किया हुआ है of the DFPR। and then there is a creation of post। क्रिएशन ऑफ पोस्ट में भी हमारे पास अब बहुत सारे पावर नहीं है, तो आप उसको पढ़ें, वन बाय वन यदि आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। तो ये सारे जो है ब्रॉड चीज पढ़ें। क्या है ये, जब आप GFR में जाएंगे तो वहां पर ग्रांट इन एड टू द ऑटोनोमस बॉडी का एक चैप्टर है, उसको पढ़ें, उसको इसके साथ मर्ज करें तो आपको समझ में आएगा कि हाउ फंडिंग टू ऑटोनोमस बॉडी इज डन। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ट्यून्ड चलते हैं, अलाइन में चलते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि हाउ द GFR का प्रोविजंस आल्सो कम्स इनटू पिक्चर व्हेन यू आर preparing BRE and making provisional funds।
अब हम और आगे जाते हैं, तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको कि आपको देखना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि इफ दे वांट टू टेस्ट द डेप्थ ऑफ योर नॉलेज, तो ये सारे जो चीज है ना, जो ये स्लाइड पर आ रहे हैं, इसको आप देखो। ये कोई स्पेसिफिक पावर्स नहीं है, मगर ये व्हाट व्हाट एक्चुअली इज दिस इज हाउ द, मतलब रूल्स इन सच दैट, इसमें ये बताते हैं कि व्हाट इज हाउ डू वी डिफाइन द थिंग्स। ठीक है ना। पास्ट केसेस क्या करते हैं, पास्ट केसेस को पढ़ो। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आता है कि वेदर अ डायरेक्टर हु हैज जॉइंड टुडे कैन टेक कैन अप्रूव एनी प्रपोजल विच वाज अंडर प्रोसेस बिफोर हिज ज्वाइनिंग। यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये जो डेफिनेशन ऑफ पास्ट केसेस है ना, वहां पर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है ना। लाइकवाइज पावर्स आर नॉट टू बी डेलीगेटेड टू नॉन गजेटेड ऑफिसर। आईसीआर के कंटेस्ट में आप बोलोगे सर कोई भी गजेटेड नहीं है, ठीक, अग्रीड, बट हम अपने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हम यदि आईसीआर के कंटेस्ट में इसमें ले लेंगे तो जो क्लास ए या क्लास बी ऑफिसर नहीं है तो उनको हम पावर्स नहीं डेलीगेट करेंगे। तो ये सब, अब यदि कोई क्वेश्चन आता है कि आंसर वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, तो और या आपसे इस बारे में ओपिनियन ले जाता है, तो यू कैन दिस रूल विथ अथॉरिटी एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। फिर तो कभी कभी इंचार्ज डायरेक्टर होते हैं या कोई इंचार्ज है, इंचार्ज डायरेक्टर के केस में लो, तो वेदर ही विल द इंचार्ज डायरेक्टर कैन एक्सरसाइज ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स। इसके दो इश्यूज हैं। अब यदि हम प्रैक्टिकल देखें तो इसमें व्हाट हैपेंस इज द आईसीआर गिव्स स्पेसिफिक ऑर्डर्स, but again it is also governed by the instructions in the DFPR that in such cases the authority should not use the is not empowered to exercise the statutory powers. Statutory powers क्या है आप जानना चाहेंगे? Statutory powers है जैसे हम कोई disciplinary proceeding शुरू करें, पेनल्टी दें, तो वो स्टैट्यूटरी पावर्स है दैट कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय इंचार्ज डायरेक्टर, वो रेगुलर डायरेक्टर ही कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन यदि आ जाते हैं कि व्हाट इफ वेदर वन इज कॉम्पिटेंट और नॉट कॉम्पिटेंट टू एक्सरसाइज द पावर, तो ये सब वैसे ही मैटर्स हैं जिसमें हम कहीं कहीं बहुत डाउट रहते हैं। तो टू क्लियर दोज डाउट्स आप यदि हम ये केवल टच एंड गो में जा रहे हैं। टच एंड गो इन द सेंस यदि आप बुक में देखेंगे तो इसका बहुत डिटेल आपको रेफरेंसेस मिल जाएगा, बट आई डोंट हैव द टाइम ऑल्सो कि हम उसको डिटेल में जा सकें। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई वांट टू सेंसिटाइज यू कि आप देखें, खुद पढ़ें, समझें, एंड थिंग्स आर वेरी क्लियरली गिवन। लोग होते हैं कि पीपल नॉर्मली दे डू नॉट वांट टू रीड, तो वो तरह में स्किप क्वेश्चनिंग की एंड आस्किंग क्वेश्चंस कि ऐसा में क्या होगा, वैसा में क्या होगा, ऐसा में वैसा में, जो भी है everything is defined, everything is being enshrined in the rules book, so you must make a habit of reading. अब now that you are also preparing for the exams, एक बार तो पढ़ लो, underline करो, समझो, and in case you have any doubt you can call me back, कोई इशू नहीं। आई ट्राई टू सॉर्ट आउट, मैंने आपके जितने भी डाउट्स हैं मैं क्लियर करूंगा इवन आफ्टर द क्लास। लाइक अगेन इंश्योरेंस ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, इस पर बहुत क्वेश्चन होता है, उसको आप पढ़ो। आई नॉट अगेन गो इनटू डिटेल्स कि थर्ड पार्टी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत ही कॉस्टली इक्विपमेंट का केस में क्या करना चाहिए, 20,000 के ऊपर होना चाहिए कि 20, ये सब यदि आप गो थ्रू दिस रूल 15 ऑफ द DFPR, एवरीथिंग इज रिटन। सो और जब DFPR के ये रूल को हम जब अपने ICAR के DFPR में जाते हैं तो वी हैव verbatim taken this features from here to our DFPR, मतलब ICAR के DFPR में। So there is no deviation as such। और ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है ओवर पेमेंट, पावर्स फॉर एमिशन। ये जो है ऑन राइटिंग ऑफ ओवर पेमेंट, इसका प्रोसीजर, यदि इस एक इशू पर प्रोसीजर पूछ लिया जाए तो most of the students or most of the officers who may not be able to reply or write on those, but if you go through rule 17, बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो कहाँ पर आपको अकाउंट्स ऑफिसर्स का कंकरेंस लेना है, कहाँ पर आपको काउंसिल को भेजना, काउंसिल मतलब हायर अथॉरिटी को लेना है,
यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। तो रूल 17 को आप गो थ्रू करो, you will be able to understand how to process cases of write off or where overpayment has been made. Overpayment जो है पेंशन का भी हो सकता है, सैलरी का भी हो सकता है, और सैलरी का हो सकता है ऐसे एम्प्लॉय का जो कि रिटायर हो गया है और ऑलरेडी रिटायर हो गया है, उसका पेंशन भी हाई फिक्स हो गया। तो वो सब डिसीजन कैसे करना, हाउ टू प्रोसेस द थिंग, हु इज द अथॉरिटी एंड हाउ डू वी टेक अ डिसीजन इज वेरी क्लियरली डिफाइंड देयर। तो ओवर पेमेंट इसलिए हम स्ट्रेस करें कि देयर आर न्यूमरस चांसेस जहाँ पर ये अप्लाई होता है। तो यदि इस पर क्वेश्चन आएगा और इफ दे आस्क यू हु इज द अथॉरिटी एंड हाउ इज इट प्रोसेस, ये सिंगल एक रूल जो है will become a question or for you to answer, and procedures is been defined. Then last है इसके बाद न्यू स्कीम। यहाँ स्कीम जो है is देखो the government of India में the funds that we get in under central sector schemes। जो government of India जो autonomous body को fund देती है वो central sector schemes में देती है। तो न्यू स्कीम का पावर किसको है, मतलब न्यू स्कीम मतलब इट में बी स्कीम जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, दे आर ऑल स्कीम्स। तो जो हमारे इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी फंक्शनिंग है, AICRP ऑलरेडी फंक्शनिंग है, KVK ऑलरेडी फंक्शनिंग है, दे आर ऑल ऑन गोइंग स्कीम। तो ICRC मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में दिस स्कीम्स आर सैंक्शन फॉर अ प्लान पीरियड। जैसे अभी भी 2021-22 से 25-26 चल रहा है, अभी EFC इज नॉट बीन अप्रूव्ड। तो उसमें है जो कि गवर्नमेंट हैज अलाउड कि भाई आप 25-26 तक इसमें खर्च कर सकते हो। जैसे अर्लियर इट वाज 17 to 20, उसके पहले 12 to 17 था 12th प्लान, फिर 12th प्लान के बाद 3 years एक्शन प्लान था, तो वो 3 years का है। तो एक डॉक्यूमेंट बनता है, तो इसमें देयर आर सर्टन एक्टिविटीज विच आर ऑलरेडी ऑन गोइंग, मतलब कोई इंस्टीट्यूट चल रहा है, हम इंस्टीट्यूट्स को ही यहाँ स्कीम मान के चलें डेफिनेशन के अनुसार। तो जो ऑन गोइंग है उसके लिए भी गवर्नमेंट स्पेसिफिक ऑर्डर्स भेजती है। आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साइट पर जाएं, यू विल गेट कि भाई द ऑन गोइंग स्कीम्स में कंटिन्यू अप टू 31 March 2021, फिर 22 हुआ, 23 हुआ, अभी 24 तक हो गया है, इन द सेंस कि भाई EFC एंड SFC इज येट टू बी अप्रूव्ड। बट अगेन देयर मे बी न्यू एक्टिविटीज, कोई नया इंस्टीट्यूट खोलना है, नया KVK खोलना है, नया, तो उस केस में या नया यदि PMO अनाउंसमेंट हो गया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अनाउंसमेंट हो गया कि ये इंस्टीट्यूट खुलेगा, इन दैट केस उसके लिए स्पेसिफिक प्रोसीजर है, वो वहाँ न्यू स्कीम में डिफाइंड। जैसे IRI झारखंड खुला, IRI वो PMO अनाउंसमेंट था, बजट अनाउंसमेंट था इनसे। तो बजट अनाउंसमेंट जब होता है तो उसको उसके लिए प्रोसीजर अलग है, उसको कैसे हैंडल करते हैं इफ यू गो थ्रू दैट। तो नॉर्मली ये जो है ना, ये एट द लोएस्ट लेवल इसकी जरूरत नहीं पड़ती, बट अगेन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स दे मे आस्क यू। तो मैंने इसको भी रखा क्योंकि इट इज कवर्ड इन द रूल 18, आप उसको देखेंगे तो न्यू स्कीम्स का क्या है। एंड सेल ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स का तरीका, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है क्योंकि ICR में ऐसे केसेस आते हैं, तो इसके भी रूल 24 में है। तो आप यदि ये जो मोटे मोटे जो है ना, जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, उसके रिलेटेड केस स्टडीज, केस पे कुछ भी आ सकते हैं और आते भी है, आपके इंस्टीट्यूट्स में भी आए, वी मस्ट हैव फेस्ड सच केसेस। So when you are facing such cases, you must refer to these rules, है ना, that will help the authority to take a decision. Now I have already discussed these। यहाँ पर DFPR खत्म हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आप इतना मत सोचो, डोंट थिंक दैट इट इज वेरी शॉर्ट एंड छोटा है, विल बी एबल टू डू इट। आप यदि डिटेल में जाओगे, I have just given the headlines, not the whole rule. If you go into details, तो बहुत सारी ifs buts का भी वहाँ पर क्लैरिफिकेशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन जो है क्लैरिफाई कर देते हैं। तो आप एक बार पढ़ो, go through those things, you will be able to, and then you mug up those things कि what finally is the procedure, उस पर आओ, and who is the authority। तो ये दो चीज को आप देखो, एक प्रोसीजर, एक अथॉरिटी। तो और उसके बाद ये शेड्यूल्स हैं, ये शेड्यूल्स जो हैं वो DFPR के पीछे है। आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ दिस अगेन, बिकॉज ये शेड्यूल एंड दोज रूल्स दे आर मतलब
on the when you are going through the rules, you will see find references to these schedules. जब हमने रूल का पास किया था अप्रोप्रिएशन रिव्यू में उसके डिटेल्स दिए हुए हैं, वहाँ पर उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन दिए हुए हैं. तो रूल में जो ओरिजिनल रूल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन, शेड्यूल में डिटेल इस तरह से है. तो यू गो थ्रू दीज इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स, खासकर राइट ऑफ लॉसेस का फिर से जाओ. एंड देन अगेन आप ये भी देखो, there are two things. There may be a write-off of losses and there may be a demurrage charge. Don't mix demurrage charge with write-off of losses. Demurrage charge of losses is something different. So दोनों का difference को you must try to understand, and the powers are very well defined in both the cases. 1 लाख के नीचे 1 लाख के ऊपर, और demurrages में तो 1000 का ही है. तो you have to be very careful. Demurrage को write-off of loss न माना, राइट ऑफ लॉस को डेमरेज में ना डाल दो. तो यू हैव टू मेक अ डिस्टिंक्शन. तो आप पढ़ेंगे तो यू थिंग्स विल गेट क्लियर टू यू. ठीक है. So these are the important things of the delegation of financial powers of the government of India. There is not, I don't think. Next slide में जाते हैं. ये भी, these are all for the purpose of questions which may be asked. What is per annum in each case? आपके पास जब डेलीगेशन ऑफ पावर आता है तो अथॉरिटी जो है कैन एक्सरसाइज 50,000 पर एनम इन ईच केस, देन अगेन इन ईच केस इन रिस्पेक्ट टू नॉन रेकनिंग. तो ये सब डेफिनेशंस भी उसमें दिए हुए हैं अंडर द शेड्यूल्स. देन फॉरेन ट्रैवल का पावर्स क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है. एंड देन इंटरनेशनल या सेमिनार ऑर्गेनाइजेशन सेमिनार्स का पावर्स क्या है. जैसे 40 लाख से ज्यादा का होगा तो गो टू द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस. डायरेक्टर को 5 लाख तक का पावर है. देन तो अब जब कभी आप सेंटेनरी या कोई फंक्शन मनाते हैं तो यू रिक्वायर टू सीक द अथॉरिटी ऑफ द अप्रूवल ऑफ द हायर अथॉरिटी, बिकॉज यू हैव टू सी अंडर विच पावर दिस कैन बी, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड कंकरेंस कैन बी अकॉर्डेड. अब आप यदि कोई प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें 10 लाख का खर्चा या 20 लाख का खर्चा, जो सेमिनार या कॉन्फ्रेंस नेशनल और इंटरनेशनल, in that case if the director doesn't have the power, who has the power? So go through that, it goes to quarter, and if it is more than 40 lakhs it goes to Ministry of Finance. So yeah, this is the graded hierarchy of power delegation. So इस पर बहुत clear होना चाहिए आपको. I have already told you about civil works. Now I'm the same grading you can see in the case of seminar, conferences, and so many things are there, like of recurring and non recurring nature जो हम परचेज करते हैं, प्रोक्योर करते हैं, तो उसमें तो these things you should take care of. और जब आप कोई एक सब्जेक्ट लेते हैं, कोई एक जैसे इंटरनेशनल या नेशनल सेमिनार कॉन्फ्रेंस, तो आप उसको एक ग्रेड बना दीजिए, इतना तक होगा अप टू हियर डायरेक्टर, बियॉन्ड दिस गोज टू दिस अथॉरिटी, फर्दर बियॉन्ड दिस गोज टू मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस. तो इस टाइप से तो आप एक ही बार पढ़ेंगे तो all the different authorities who is competent sanction to the extent mentioned there, you will be able to know. अब वही है पर एनम जो है, आप देखेंगे जो आप पूरा डेफिनेशन ना, आप चले जाओ उसको डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स का किताब में, तो वो वहां पे आपको मिलेगा. पेज नंबर 81 में चले जाना, ठीक है. एंड इफ आप उसको पढ़े, पेज नंबर 81, टेक नोट ऑफ दैट. फॉर रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन पर एनम इन ईच केस एंड इन ईच केस इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन रिकरिंग कंटिजेंट एक्सपेंडिचर. इसको बहुत ही अच्छा से पेज नंबर 81 में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है ना. तो आप पढ़ो. आई विल नॉट स्पून फीड यू, आई विल जस्ट गाइड यू. स्पून फीडिंग के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ. आई विल बी गाइडिंग यू, एंड इफ इवन आफ्टर going through that you are not able to understand, you get confused, so you are welcome to call me back. My number is Dr. Eskadas. You can always get the number from him, or it is in the telephone directory. Now we go to the second document, that is rules and bylaws of ICAR. Because why do we go into the rules and bylaws of ICAR? Because the powers of the, ये जो है ना, हम जो लेफ्ट साइड में लिखा है, दे आर ऑल द अथॉरिटीज ऑफ आईसीआर. हाँ, और लास्ट आप देखो, अदर सच पर्सन बॉडीज अपॉइंटेड बाय जीओआई, जीबी और सोसाइटी. जीबी इज गवर्निंग बॉडी. हाँ, तो
अब these authorities, ICAR is an autonomous body, है? So every authority will have some power to exercise so that ICAR can function. So these rules are defined in the rules and bylaws of ICAR. Why I am stressing on this? Because this also forms part of the curriculum on delegation of power. So you go through these. ये rules and bylaws जो है 2002 में has been updated. Now it is once again being updated. More or less, as far as the powers are concerned, उसमें कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं आया. सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है इज अ लेट एंट्रेंट इन द अथॉरिटीज ऑफ ICAR. तो अभी जो रिवाइज होगा डेलीगेशन ऑफ पावर, तो उसमें वो स्पेसिफिकली पावर्स का आ जाएगा, बट एज ऑन डेट उनका पावर नहीं है. बट क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को पावर है, तो दैट टू दैट एक्सटेंट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को भी पावर रहेगा. व्हाट आई मीन टू से, तो इट इज नॉट दैट रूल 21 इज रिलेटेड टू सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, it is related to vice president, but senior vice president being senior to him can always exercise powers to that extent. This is what I am trying to differentiate between senior vice president and the powers delegated to them. तो ये जो 6 अथॉरिटी हैं, इनको जो रूल्स एंड बायलॉज में जो पावर्स दिए हुए हैं वो इज डिफाइंड. इनको आप देखें, क्योंकि जब हम थर्ड डॉक्यूमेंट में जाएंगे ICAR के delegation of financial powers, when I go into the third document, वहाँ पे the powers to these authorities, मतलब डायरेक्टर जनरल एंड सेक्रेटरी, ये जो ऊपर के 4 हैं वो तो अल्टीमेट पॉलिसी डिसीजन अथॉरिटीज हैं, बट डे टू डे फंक्शनिंग में डायरेक्टर जनरल एंड सेक्रेटरी, ये जो 2 अथॉरिटी हैं, ये डे टू डे फंक्शनिंग भी अपने एक्सरसाइज एंड पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं. तो रूल्स एंड बायलॉज जो है वो इनको इस रूल के तहत बहुत सारे पावर्स डेलीगेट करते हैं, एंड इट इज डेलीगेटेड ईदर बाय द प्रेसिडेंट और बाय द गवर्निंग बॉडी. व्हाट आई मीन टू से इज दैट जब हम ICAR का डेलीगेशन ऑफ पावर देखेंगे, तो देयर आर 2 सेट्स ऑफ पावर टू डायरेक्टर जनरल एंड सेक्रेटरी. ठीक है ना? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे. एक सेट है इज गवर्न्ड बाय द रूल्स एंड बायलॉज एंड द अदर सेट इज जनरल, हाँ, जो कि गवर्निंग बॉडी फ्रॉम टाइम टू टाइम इन इट्स मीटिंग दे हैव अलाउड. तो रूल्स एंड बायलॉज में जो स्पेसिफिकली ऑर्डर दिया हुआ है, पावर्स दिया हुआ है, वो तो वो एक्सरसाइज करते ही. बट ओवर द इयर्स गवर्निंग बॉडी टू फैसिलिटेट क्विक डिसीजन मेकिंग, दे हैव बीन गिविंग पावर्स नॉट ओनली टू द DG एंड सेक्रेटरी बट टू अदर अथॉरिटीज. अब जैसे JS लेवल के ऑफिसर्स को भी हुआ है, DDG को भी हुआ है, डाउन अंडर इफ को प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर को, डायरेक्टर को, उसके बाद जाओ तो हेड ऑफ द डिवीजन को, हेड ऑफ द ऑफिस को, उसके बाद आप जाओ तो हेड ऑफ द रीजनल स्टेशन को, देन IMC को. इस टाइप से सारे के पावर्स डिफाइंड. ठीक है ना? तो ये पावर जो आ रहा है वो गवर्निंग बॉडी से आ रहा है, बट डायरेक्टर जनरल एंड सेक्रेटरी दे एंजॉय पावर आउट ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड बायलॉज आल्सो, एंड दोस accorded by the governing body. तो आप जब हेडक्वार्टर का पावर्स का पेजेस देखेंगे, तो उसमें जो है आप देखेंगे कि दोनों 2 कॉलम बना हुआ है. तो आपको समझ में आएगा कि पावर्स DG का नाम 2 बार क्यों आ रहा है या सेक्रेटरी का नाम 2 बार क्यों आ रहा है. उसमें एक जो जैसा मैंने कहा, कुछ पावर्स आर वेस्टेड बाय द बायलॉज एंड रूल्स ऑफ ICAR एंड सम पावर्स जो गवर्निंग बॉडी देती है. तो इसका डिफरेंशिएशन को भी आप ध्यान रखेंगे व्हेन यू आर स्टडीइंग कौन से पावर इज फ्लोइंग फ्रॉम द रूल्स एंड बायलॉज और कौन से पावर इज कमिंग थ्रू GB. यदि आपसे पूछ दिया तो यू शुड बी एबल टू आंसर. उसके अलावा जो हमारा जो रूल्स एंड बायलॉज है वो इन बॉडीज एंड जो इम्पोर्टेंट अथॉरिटीज हैं उनके बारे में भी डिफाइन करता है. तो इसके बारे में भी आप इस चारों के बारे में आप थोड़ा पढ़ेंगे, उसमें है. इट इज ऑलरेडी देयर इन द रूल्स एंड बायलॉज. I hope you all have the copy of the rules and bylaws with you. So इसको पढ़े, इसको समझे. Who are the members, what are the authorities, what are the powers, and what are their responsibilities and duties. वो भी है. So everything is enshrined. The only thing is you need to study those things. तो ये आप देखेंगे. I am trying to मतलब sensitize you on the broad aspects which you need to study. क्योंकि इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं. तो यू टेक केयर ऑफ दोस थिंग्स कि ये सब पर हम पढ़ें. RCM का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, इसमें ध्यान देना है कि
RCM मैनेजमेंट कमिटी ये या साइंटिफिक पैनल में कुछ सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स भी आए, ट्राई टू टेक होल्ड ऑफ दोज ऑर्डर्स, देन ही विल बी अपडेटेड इन दोस थिंग्स. ठीक है. नेक्स्ट. अब देखो कि जो मैंने कहा कि ये जो रूल्स एंड बायलॉज है उसमें गवर्निंग बॉडी जो है वो अथॉरिटी देती है अपने सबऑर्डिनेट अथॉरिटी इंक्लूडिंग डीजी सेक्रेटरी एंड अदर अथॉरिटी. इसके अलावा द प्रेसिडेंट द ऑनरेबल यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर कैन आल्सो डेलीगेट पावर्स. हाँ, दूसरे अथॉरिटीज को दे सकते हैं. ये रूल 20 में डिफाइंड है ऑफ द रूल्स. एंड द सेक्रेटरी आल्सो कैन गिव डेलीगेट सच पावर्स अंडर रूल 23D. और गवर्निंग बॉडी तो खैर करती ही है. तो ये सब अथॉरिटी जो है ना, फर्दर अथॉरिटीज who can further delegate the powers. ये सब अथॉरिटी है who can further delegate the power as per the rules and bylaws of ICAR. तो इसको देखें, रूल्स का रेफरेंस देखें और उसमें क्या है. ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है मगर ये to help you to understand कि how the powers gets delegated to the subordinate authorities. Next. Now, what are the difference between रूल्स एंड बायलॉज? यदि आप रूल्स को देखेंगे तो इट गिव्स अ ब्रॉड व्यू ऑफ द प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ आईसीआर. एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, कैसे पावर्स किसको क्या देना है, क्या है, कैसे क्या की ड्यूटीज, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो रूल्स में कवर होता है. बायलॉज में आर द सब्जेक्ट्स व्हिच इज कवर्ड हियर. अब देखिए वहां पर, यहाँ पर, so you can have, you must make a difference between what are the powers flowing from the rules, what are the powers flowing from the bylaws. ये देखिए, अब यहाँ bylaws में you have the budget, delegation related to expenditure sanction. अब आप वहाँ रूल 4 में चले जाए जो फर्स्ट वाला में, जहाँ हमने DFPR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखे थे, वहाँ वही जनरल लिमिटेशंस ऑन सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर है. यहाँ भी डेलीगेशन है ऑन एक्सपेंडिचर सैंक्शन. दोनों में देखेंगे एक मैंने दे विल बी नो डेविएशन, उसमें एक सामने पाएंगे. हाँ, एक यूनिफॉर्मिटी पाएंगे बिकॉज बोथ आर ट्राइंग टू address the same issues. Then how the accounts of ICR is prepared, led and how it is audited is also covered under the bylaws. Then again here again once again it comes the right of procedures and other issues related to investment to ICR funds. Normally the ICR funds जो यहाँ पे है वो GPF को मीन करता है. So it gives the authority and the process and the procedures of investment of fund, how the contract is to be signed, legal proceedings का क्या पावर है, who has invested, वकालतनामा कौन साइन कर सकता है, उसके ऑर्डर्स होते हैं. तो how are these powers governed, exercised by authorities, ये बायलॉज में आते हैं. उसके अलावा अदर फाइनेंशियल इश्यूज भी इसमें कवर होते हैं, वो पर्सनल मैटर, सर्विस कंडक्ट एंड स्कॉलरशिप फेलोशिप. तो बायलॉज इज अ थिनर वर्सन. रूल्स में ज़्यादा डिटेल नहीं है, रूल्स को ज़्यादा ध्यान दीजिए. बायलॉज में बहुत स्पेसिफिक है कि अकाउंट्स कैसे दे होते हैं, उसके ऑडिट कैसे होते हैं, SAR कैसे बनता है. तो दोस विल बी कवर्ड इन अदर चैप्टर्स, अदर सेशन ऑल्सो. तो यहाँ पे यू स्टडी दिस टॉपिक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द डेलीगेशन ऑफ पावर. तो जैसे हमने आपको पहले एक्सप्लेन किया, व्हेन आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन द बजट फॉर्मुलेशंस and how the graded formulations of graded powers have been given in the down the hierarchy. इंस्टीट्यूट में कैसे बजट होता है, फिर SMD, DD, फिर DG, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जाता है डेयर के थ्रू. वो मैंने आपको बताया, ये बजट उसी को कवर करता है कि कैसे हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं. बजट का आगे का बी. नाउ वी कम टू द थर्ड डॉक्यूमेंट. The third and the last document, इसमें ये है जो रूल्स जो है डेलीगेशन ऑफ पावर्स ऑफ अथॉरिटीज ऑफ ICAR. तो अब ये जो पावर्स ऑफ द सोसाइटी वो फिर रूल्स एंड बायलॉज के रूल 16 से आता है. ठीक है ना. देन अगेन द पावर्स वेस्टेड, हम आपको फिर से बता दिए, पावर्स वेस्टेड एंड रूल्स एंड बायलॉज एंड दोज डेलीगेटेड देयर अंडर. वो फिर आप चले जाए वापस उधर. तो ये डेलीगेशन ऑफ पावर्स में रूल्स एंड बायलॉज का रेफरेंसेस है. What I am trying to say is that
कि ये जो डेलीगेशन ऑफ पावर है, इट इज नॉट दैट इट इज स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट, it is also based on the other two previous documents that I have discussed till now. ठीक है ना? तो ये all तीनों जो है एक सिमेट्री में आ गए, ठीक है ना? हाईएस्ट लेवल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, फिर गवर्निंग बॉडी या आईसीआर का हो, अब हम नीचे अथॉरिटीज ऑफ आईसीआर एंड डाउन अंडर के में जा रहे हैं। तो ये एक जो इंटर डिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंसेज है, उसको हम कैसे करते हैं, प्रोसीजर्स हु कैन डू, हाउ इट इज डन, वो उसमें डिफाइंड है। इंटर डिपार्टमेंटल हम कैसे करते हैं, हम हेडक्वार्टर में कैसे करते हैं, एंड दो थिंग्स। तो इसको आप पढ़ें, दिस थिंग्स विल क्लियर लॉट ऑफ डाउट्स एंड दैट विल हेल्प यू in your day-to-day functioning. Apart from you are preparing for the exams, I wish you all the best for the exam, but again, for the sake of knowledge and to keep yourself abreast with the latest issues so that you can put up the issues in the right perspective on the file, you must refer to these issues. Next we go. और जो delegation of powers है, वो is divided into 5-6 sections. तो फर्स्ट सेक्शन में इज इंट्रोडक्टरी, जो मैंने आपने दिखाया। सेक्शन 2 में ये फिर से पावर्स है। नाउ अगेन ऑल these पावर्स ये इज ऑलरेडी मेंशन इन द रूल्स एंड बायलॉज ऑफ आईसीआर, नथिंग न्यू, नथिंग और, द सेम थिंग हैज बीन रिपीटेड हियर। तो सेक्शन 2 कवर्स दिस थिंग। तो इफ यू प्रिपेयर, माने यू हैव टू, इफ यू प्रिपेयर इन दैट वे, रूल्स एंड बायलॉज पढ़ोगे तो यहाँ पर भी वो कवर होगा। एंड अगेन द रेसिड्यूअरी फाइनेंशियल पावर्स, यहाँ पर यदि जो पावर्स हम ऊपर के सभी अथॉरिटी को चाहिए और कुछ भी नहीं है, those things goes to the governing body। और गवर्निंग बॉडी का में आप देखो कि उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, डीओपीटी के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। So the purpose is where the powers are not defined, it will go to the governing body where the representative of all those ministries are also there, and then it is finally approved by the Union Honorable Agriculture Minister. So एक तरह से देखें कि it goes beyond ICR and the highest level to the level of the Honorable Minister. तो ये रेसिड्यूअल पावर यहाँ पे आ गया। There may be things which, अब इसमें ये बहस वाली बात नहीं है कि सर यदि कोई पावर नहीं है तो the powers cannot go beyond the instructions of the Minister of Finance, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का DFPR है। तो वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो जाएगा। तो their powers are well defined, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑटोनमस बॉडी हम कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे ऑटोनमस बॉडी के फंक्शनिंग के बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस हैं, टू व्हाट एक्सटेंट द रेसिड्यूअल पावर्स का एक्सरसाइज करते हुए ऑटोनमस बॉडी अपने डे टू डे फंक्शनिंग को करती है। तो वो पीछे अपेंडिक्स में लगा हुआ है इस डॉक्यूमेंट के, आप उसको देखें, नेट पर है, दैट विल हेल्प यू। नेक्स्ट, नाउ दीज आर द अथॉरिटीज। इसमें इतने ज्यादा अथॉरिटीज हैं, इसमें जो हम आपको सजेस्ट करेंगे, आप सब्जेक्ट वाइज जाओ, अथॉरिटी वाइज मत जाओ, दैट विल बी ऑफ ग्रेटर हेल्प टू यू। आप जैसे 15-20 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सिविल वर्क्स, इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट, व्हीकल, फिर फार्मर फेयर या अदर कॉन्फ्रेंसेस, नेशनल इंटरनेशनल, फिर आपने कि जो भी इस टाइप के फॉरेन ट्रैवल, तो इसके बारे में जो पावर्स हैं वो आप देखें कि लोएस्ट में कहाँ है कि नहीं है तो हायर जाएगा, जाते जाते कहाँ से जाता है। आप उसको एक ग्रेडिंग बना लो, दैट विल हेल्प। क्योंकि जब आप इफ यू गो दिस वे, ये जब आप इस अथॉरिटी में बैठेंगे, देन दिस विल बी ऑफ हेल्प टू यू कि भाई एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज माय पावर, बट फॉर द पर्पस ऑफ योर स्टडी, इफ यू डू इट, आप ऐसा पढ़े कोई दिक्कत नहीं, बट अगेन इफ यू मेक अ टेबल यहाँ पर कि लोएस्ट अथॉरिटी को क्या पावर है, इसके ऊपर किसको पावर, इसके ऊपर किसको पावर, यदि आप उससे ऐसा टेबल बना देते, हायरार्की बना देते, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन टेकिंग डिसीजंस इन द इंस्टीट्यूट। उसमें कुछ केसेस हो सकते हैं जहाँ हेड ऑफ द डिवीजन का पावर हो, कुछ पावर उसके ऊपर चला जाएगा, डायरेक्टर के पास चला जाएगा, कुछ पावर उसके ऊपर चला जाएगा, डीडीजी के पास चला जाएगा। तो पावर से यहाँ सारे अथॉरिटी को डिफाइन है, जस्ट गो थ्रू दोस and then subject wise बना दो, that will be of much help to you in your studies. Next, ये जो तीनों पावर्स हैं, ये अगेन फर्स्ट जो है विल
are governed by the Government of India instructions, DFPR of the government. These are the sections in the delegation of powers in ICAR. So these sections are also been governed by the DFPR of the Government of India. And the third is हमने आपको बताया कि द बायलॉ से उससे जो पावर आता है उसके बारे में डेफिनेशन है. तो इन द सेक्शन 4 में ये. तो आप यदि बायलॉज की बात करेंगे और रूल्स एंड बायलॉज से, तो हमने अपने आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड, मैंने एक्सप्लेन यू बिफोर कि जो अथॉरिटी, प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, वो सारे पावर्स जो है रूल्स एंड बायलॉज आर. दिस हैज जस्ट बीन पुट इन सेक्शन 4 आल्सो टू रिमाइंड यू. नेक्स्ट, नाउ अगेन यहाँ पे जो है ये सेक्शन 5 में है. These are basically Government of India instructions which has been incorporated in the delegation of financial power of ICAR, because somewhat may will restrict ourselves to these instructions while exercising those powers. So general limitations on powers to sanction expenditure is the same as Rule 4 in the DFPR of the Government of India. Financial powers of autonomous bodies, restrictions regarding this page, there is a specific order of the Government of India who is been appended in the delegation of powers of authorities in ICAR. The purpose is that wherever in case if there is a deviation, we'll take this as a guiding law to see that it does not contravene to the instructions of the Government of India. Then past cases वहाँ भी defined था, मैंने आपको बताया, यहाँ भी defined है. It is the same. So it is a type of repetition. Sanction of excess expenditure. यदि हमने किसी का sanction लिया और वो खर्चा ज़्यादा हो गया या जो भी हो, तो उसके प्रोसेस डिफाइंड है. रीडेलीगेशन कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं. Whether power delegated can be redelegated, to what extent, कहाँ नहीं कर सकते हैं, has been explained in the document. इस पर भी क्वेश्चन आता है. Writing of disallowance of overpayment, we have already discussed, and the insurance of consuls property is the same as the Government of India. And there are some. ये आप देखेंगे कि these are all repetitions of the first document. तो इसमें बचा क्या, बचा केवल एक बहुत सी कम चीज बचा. आप सिंपल पावर्स देखें. यदि if you have read the DFPR, if you have read the rules and bylaws, तो इसमें you have just the section 2 या 3 जिसमें कि सारे अथॉरिटी 3 में जो था सारे अथॉरिटीज को पावर है, उसको आप आइटम वाइज, सब्जेक्ट वाइज पढ़ लें. दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प. नेक्स्ट, then these are the some of the instructions of Government of India which have been included in the DFPR. जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव सब कमेटी बनी है, एक फाइनेंस सब कमेटी बनी है, उसके मेंबर्स कौन है इज गिवन इन द DFPR, और उसके पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या has been defined in the DFPR. आप उसको पढ़े. Creation and abolition of posts के जो Government of India का जो latest instructions, you must go through that so that you can keep yourself updated कि किसको क्या power है. Then financial powers के जो restriction है in autonomous body, वो normally they have given full power to carry out your day-to-day work. There are certain restrictions. जैसे हम reappropriation में restriction है, फिर बजट का प्रिपरेशन में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इंटरवेंशन है. तो दो थिंग्स आर मेंशन्ड है. हाँ, और इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी. जो अथॉरिटीज और ICAR है उसमें फाइनेंशियल एडवाइजर इज नॉट एन अथॉरिटी ऑफ ICAR. फाइनेंशियल एडवाइजर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड व्हाट his role is to keep a eye on the day-to-day functioning of the autonomous body and to ensure that the Government of India instructions, Ministry of Finance instructions are carried out in letter and spirit in the autonomous body. So ये जो है is very important क्योंकि it the financial powers, the financial advisors have immense power in advising the authority and ensuring that the autonomous body functions as per the instructions and orders of the. This is what is all the subject I have given you. Go through these documents and prepare it on the basis of what are the subjects which are being covered. और आप इसमें से वर्कआउट कीजिए क्वेश्चन क्या क्या बनेगा और फिर उसको तैयारी करो. और कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि सारे चीज हैज बीन क्लैरिफाइड इन दिस रूल कोर्स.
हम बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में देखते हैं कि लोग क्वेश्चन करते हैं, बट there is not a single question which doesn't have an answer in these three books. These are the Bible for the finance officer as well as for the administrative officer. Thank you, and I wish you all the best in your endeavor. Thank you, Das. Sir, thank you very much, sir, for your nice presentation on delegation of financial power in various authorities of ICAR. Sir, for your information only, we have already conducted the session on DFE of Government of India. Delegation of financial power rule by Government of India. We have already conducted the session. Good. And another session on the rules and bylaws of ICAR also I have included. It will be also conducted afterwards. Okay, sir. So your session also is a very brilliant and it is a very guiding force. I think means it has covered all the aspects. So it will give a very glimpses of all the things. Means they can understand. What I was trying to do is that we must not study in isolation. Yeah, sir. All the three documents refers to each other. So Sir. if you read it in all the three documents, you get a clear view of the things. This was my effort. Sir. Sir, one question from the chat. Explain about per annum in each case and each though that ceiling is there. आप पेज नंबर 81 पर चले जाओ, उसमें बहुत अच्छा से डिफाइन किया हुआ है, पढ़ लो. DFR Government of India. Moreover, that document also I have shared to all of the participants. तो अब हम इसका स्लाइड यदि हम 100 स्लाइड बना देंगे तो भी it will not cover the complete details. तो इसलिए I have kept it very brief. हाँ, and I have given you the page number also. आप पढ़ लो. I don't think you are all intelligent people. आपको समझ में आ जाएगा. Sir, one more question. In case of ICAR, who is CAA means Comptroller General, but CAA, CAA, who is CAA, FA or DG or Secretary? Chief Accounting Authority is the Secretary to the Government of India. Yeah. Chief Accounting Authority is the Secretary to the Government of India, that is Secretary there, DGICR. Okay, DGICR. Your answer for Financial advisor is the authority, is the representative of the Ministry of Finance who ensures that the Government of India instructions and orders are properly implemented, observed in autonomous body. Sir, in ICAR system, who is the senior vice president and vice president? Senior vice president का post नया create किया गया after the Ministry of जो एक पहले there was one DAC तो और हमारा डेयर अलग था. अब एक एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के जो हमारे मंत्री महोदय है, ही इज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट. सर जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं वहाँ पर ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, वो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट. उसके ऑर्डर्स भी हैं. आई विल गिव यू दैट, बट देन आई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इट इज एक्स ऑफिशियो, नॉट द पर्सन. The person holds the office. Yes. The person is Union Minister for Animal Husbandry and Dairy. Okay. Sir, और हमारे जो मंत्री हैं MOS वो वाइस प्रेसिडेंट है, और हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं अभी तोमर साहब हैं, he is the president. Sir, thank you very much. In spite of your very busy schedule, you have spared time for the trainees, for the participants. We are grateful, we are really honored for your presence in this session. Still I was having up to yesterday I was having doubt whether you will be able to conduct the session or not. So that is why so many times I have called you, I have given message to you also, sir, because I was having the apprehension that you could not be in a position to conduct the session due to your busy schedule. Sir, thank you very much. Really, we all, on behalf of all the participants, we are very much grateful to you, sir. In spite of your very busy schedule, you could. It is a pleasure, Das, to talk to you and all the prospective candidates, and I wish them all the best. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. I take leave. Sir, you can leave the session, sir. Thank you to everyone. Okay, sir. Okay. Now, for the information of the participants, just I want to tell you, I will be sharing the PPT of this session along with
the PPT of the GEM, Government E-Marketplace, I will be sharing. The GEM session is supposed to be conducted on tomorrow, okay? But due to some pre-occupancy of the resource person, the session will not be conducted tomorrow. But I will be sharing the PPT of the GEM. You go through the PPT of the GEM. There are questions, so many questions, and thoroughly you go through this PPT. After all, on any day, the session will be conducted, but the GEM session will be conducted on Saturday only. During the month of September, on any Saturday, I will give you prior information that GEM session will be conducted. And today itself, I am sharing the session of GEM and today's session also. And so far, I have not got the session on budgeting. That PPT I have not got. That is why I have not shared. So whenever the PPT is not being shared from my end means I have not got the PPT. Okay, you should be clear on that point. The moment I am receiving the PPT from the resource person, within the 5 minutes of time, I am sharing the PPT. Okay, so any PPT is not shared means I have not received that PPT. Okay, so this is all about the today's presentation. Any participant is having any doubt or on anything regarding the session or anything? You want to tell anything? Any participant you want to tell? Any suggestion? Anything? Pardon? You can unmute and tell. If anyone want to tell something, you can unmute and tell. Date of examination also, it is not within our purview. I cannot tell. It is up to ICAR. But it is expected maybe after your completion of this training program, your exam may be conducted. So you pray to God that exam should be conducted after this completion of the training program, because it is not within our hands. YouTube session, it will be shared for revision purposes. It will be shared. Already I have shared 10 sessions YouTube. Another also it will be shared. You have patience. You just go through all the shared YouTube or whatever documents I have provided. You just go through. Okay. And regarding your problem in income and expenditure, receipt and payment account, you should go through one book. You have to procure. You have to purchase. Yeah, you just refer any book. Okay. Then you have to practice those income and expenditure, receipt and payment account. Otherwise, it will be difficult. In a session, you won't be in a position to clearly get all the things. You have to practice also these things at your free time or at your home or in Saturday, Sunday. Saturday, Sunday, 2 days you are having. 2 days means you just imagine how many hours. 48 hours you are having. So there in 2 days, you can put maybe around 30 hours if anyone can want. Per day, 15 hours you can put. Delegation of power, that I have already shared to you. That book I have already, someone is asking regarding delegation of power, that I have a PDF document I have already shared to you. Anything? It is all about the research person will guide you. Okay, they will guide you, suggest you. Okay, give some clarity. They will clarify your doubts. But finally, you have to study. It is you only. You have to study. You have to take all the responsibility. And you have you have to sit at least minimum 5 hours a day. 5 hours apart from excluding your office hours. You have to sit minimum 5 hours a day. Okay, and Saturday, Sunday. Saturday you have to sit at least 10 hours. At least 10 hours. Saturday, Sunday. Saturday 10 hours. Sunday 10 hours. It's an examination. Okay. It is an examination like class 10, class 12. Okay. Irrespective of your age, if you are appearing in examination means you have to prepare. Okay. There is no other alternative. No excuse. Okay. Thank you. Thank you very much. So today's session we are closing, and the next session we will be having on 31st August. Okay. In between, we do have no session. The next session is on 31st August.
Okay. In between, if something document I will be getting, I will share those documents. And in between also, I may share some questions to you. This period, some questions, assignment I will share. Okay, regarding income and expenditure, profit and loss, whatever it may be. This 4-5 days gap is there, so I will be sharing some assignment to you. Okay. Okay then. Thank you all.